Now it's okay. Are you getting my screen? Yes, sir. So we have apply family of functions. We have various apply functions. There are here the apply, L apply, S apply, T apply, R apply, V apply, M apply, E apply, etc. So lots of. But they are for different sort of loops, for loops, while loops. So here we have function. We don't have to make the loop, and we will study about few of the apply functions which we generally use. First apply function we have already covered: object, margin, and function. This we could input matrix, data frame, whatever we could apply this function. So first of all, I am making a matrix. There are 90 elements in this matrix, so 15 rows and 6 columns. So this matrix I am making here, and this is my matrix. If you see, 15 rows and 6 columns, and length, I am just asking how many elements. So 19 elements, 90 elements are there. If I want to draw the matrix, so you could see this is my matrix. That is the 15 rows and 6 columns, 90 elements are there. Then I will write the call names and row names. So call names, I am writing the so I am writing the name of persons. In the row names, the day I am writing, and I will again show you. Look at this: the Madhuri, Ankita, Yogita, Priyanka, Karamjita, Kancha, and days. And this is the number of questions they have make the data entry. Okay. So 35, 65, Yogita 39, Priyanka 45. So the day one they have entered in this much questions in some software, and then this much, this we are showing here. And we see the class of this. This is matrix array. What we are doing now. If I want to know, find the maximum number of question typed each day. If I want to know, we have a questions typed every day. I explained to you is the question in one day. The maximum question typed by Akanksha in the first day. Second day also Akanksha. Third day you will see here the Yogita typed maximum number of questions. So this we have to find out. So we will use the maximum function. On the tutor track question is our matrix name. And the first row we will write before comma. And after comma, we are putting blank. It means it will give us all the columns. So you will see we are getting from the row, sorry, not all the columns, the maximum function we have used. So it will calculate, it will look after all the columns and what is the maximum. It will give us the 87 is maximum. We want to know about the second row, third row, fourth row. This is the one process. The iteration we are making manually. Okay. Second option is what? Second option to make a for loop. Okay. This we could do one by one. And the for loop, I in 1 is to 15. We have the 15 rows. Okay. Row, tutor track question I. This is the row. What is row? Maximum, max row. Print max. So this would I will get all the maximum values all together through the for loop. Okay. This is the another process. Otherwise, first you could do manually one by one. You could do this way. And third one is our apply function. Apply function, we are using tutor track dot question. Second is the for row. First is for column and mean. Here we are using max.
So you could use the max here. I have taken here the max apply tutor track question one. It is the one, but two I will put here max. Okay. And I just run this. You will see Madhuri 54, Ankita 120, Yogita 98, Priyanka Karamji 86 and this. And if I see the class of this, so I have to give some name, then I could see the class. So here I see the class, here I put 2 again. So I will get the same thing as I am getting here, but I have given an object name. So it will go in the global environment. And then I see the class of this. So class is the numeric, it is a vector. It is a vector. If I run the A1 and you will get this. This is a vector. Okay. If I ask whether it is true, if I ask it is data frame, false. It is not a data frame, it is a vector. So we'll get the vector output when we use the apply function. Is there any doubt, anyone? Yeah. Any doubt? The same function we could use for the column. In the case, these two we have taken, two for column, the one for row, sorry, one for, I have to take for one. And one for row, if I run this, I will get this. So that was the column wise. Now it is the row wise because we were doing here the row for loop. Okay. So it's the day 187, day 298, day 374. This was the maximum value day wise. And if we see the column wise, what is the maximum value? We could put 2 instead of a 1, sorry. And we get the Madhuri did the maximum 54 questions in 15 days. The maximum number of questions in a day, she entered 54. Ankita 120, Yogita. So this is the maximum performance. And we could make some, I tried some plot here. So it is like this, the bar plot round apply function. So through the apply function, we could use in the bar plot also. So it is the bar plot, Ankita, this all what function we have taken the mean, average number of questions. Okay. Average number of questions, I have made this graph. And I have taken the mean, so mean graph. So I will just show you from round. So I will get this the mean number of questions fed by the persons. Okay. So this is our first apply function. Apply function we could use on data frame also. This we have used on the matrix. Now I am making one data frame for the same. So here you see in the data frame, we have to make each column as a vector. So C1 is the first column, C2 is the second column, C3 is the third column, fourth column, and the 15 elements are there, the same. And if I see the class, so it is a data frame. And if I print this, you will get in this way, C1, C2, C3, C4. And when we have printed the matrix, it was like this. Okay, you see, you could easily recognize what is matrix. So this is a matrix in this way. But here you see in the data frame, we have 1, 2, 3, 4. We don't have this square brackets here, the row side and the column sides. Okay. They are indexed. Now we are giving name, row and columns, and we could view this. So this one is like this. Now what I do, apply function I am using here also the same thing.
So I will get the mean of each row. I could get the mean of each column. Okay. If I want to make it round off, I could make it. Now, what I want to do, I want to make one, I want to add one another column. Okay. In that data frame, in this data frame. So this is the 15 entries I am making, and I will show you the data frame. Now we have, instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Rohit is also there now. So we see I am making one NA value. I will show you if there is some NA, how we could apply the apply function. So 2, 7, second row and seventh element I am going to convert in NA. So seventh row and second element I will show you first. Second row and second row and seventh element is 145. So I will convert this in NA. So this is NA. Now I will show you. Sorry, I will just again run this. But I could show you here, so it would be better than NA. Okay, don't have to print again. So this is NA, and I want to find out the mean of this whole data frame. So what I will get, the row wise it's okay. Row wise I am getting the mean. The row 2 I am getting the mean. NA I am getting the NA. Okay. Because there is one NA value. If I want to find out the mean column wise, what happens? So here also I am getting NA. In the row there is a NA value. So at that moment, you don't putting the missing value. You are not inputting any value instead of missing value. You are not substituting any value over there. You just want to calculate the mean of remaining elements. And then what you will do? You have one attribute, na.rm, na.remove. Whatever the na, it will remove during the calculation, and it will calculate the mean. So apply function tutor take.df one row wise, and na.rm true you have to write whenever you have the na. So you want to find out, still you want to run that function. So it is 51. Got it? So similarly, we could do for columns. Using that. So it will make the 14 numbers will be added on and divide by 14. Functions I have explained you already. This you run by yourself. One function we have created for the circumference and area. Okay. So and we have applied in the apply function, our own function. Okay, proportion function I have made x over maximum of x I have taken. Generally, we take the sum of x. Here I have taken the max of it. And you could apply this. Now we talk about the lapply. Lapply object, the input object. सर एक क्वेश्चन है. Yes. अप्लाई फंक्शन में दो पैरामीटर पास कर सकते हैं या हमेशा एक ही पास होगा? तीन है ना? नहीं, जो अप्लाई फंक्शन के अंदर जो फंक्शन पास हो रहा है जैसे प्रॉप, एक ही होगा. एक ही होगा हमेशा. अब lapply में यदि हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वेक्टर हो सकता है. हम वेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि अपने अप्लाई फंक्शन देखा, मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम पे अप्लाई हो रहा था, है ना? वेक्टर पे भी हो जाता है वो. तो ये वेक्टर, लिस्ट एंड डेटा फ्रेम इस पे अप्लाई होगा. और आउटपुट जो हमें मिलेगा वो लिस्ट में मिलेगा. और पिछला जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो मिल रहा था वेक्टर में. अंतर समझ में? lapply और अप्लाई फंक्शन मेजर डिफरेंस. मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ सेम चीज का, है ना? और आई विल शो यू द लिस्ट. इज द लिस्ट ऑफ साइफर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. Ankit, Priya, Savita, Sumit, and Urmila, they have got this marks out of 10 in the different assignments. Okay. This is the list of those marks. This is a list.
And I use the lapply on the list. I could use the lapply on the data frame matrix. What? So cipher marks. Okay. Dot list in my data frame. Oh, sorry, list name, object name, and I want to find out the mean. So there are only two attributes, and there is no margin. Margin means the row and column. So it will give us always column. List has only the sub list. It will give me the average of sub list. Okay. So I will just see here. So it is giving me the average of sub list. The Ankita, this list average it is getting out. This list average it is getting out. So in this way we are getting these results. And the output always would be in a list. Okay. And lapply used for vector. We could use it for vector also. Uh, Suppose it is a vector. This is a random vector and random. So I'll just run this. This is my elements in the vector, the different elements. And I use this lapply random n character, number of character in each element. And the first, second, third. So there are the four elements, four number of vector, number of character to one. In this way, we will get this nk. This we applied on a vector. Does that make sense to you? The spelling is not correct. Got it? Any doubt here? So we could apply on the vector, we could apply on the data frame. Okay. Lapply, if we apply on the data frame, we have a data frame. Last time we have made the data frame, tutor tech df, this name of the data frame. We apply on this also, lapply. So just copy this and I put it here. Where is that lapply? Yeah, okay. Just put here and I make it L. And here I have to remove this attribute is not required. I just want to the mean. So I'm getting the mean in a list format. Is it clear now? No. Directly we could find out the number of character if we have this numeric vector and n character vector y. Oh, I just see x class of so it is giving me 11 and it is an integer n character. So it is the we take n character directly. We are not using the apply function. I just show you how we could find it out. So now there is apply function. Apply function is a object whatever you could input the vector list and data frame. Output vector matrix or list. The output as per the thing you will get the vector, you could get the output in a matrix or a list. So we have a different output. In the previous case, apply, you got that we have an output is a vector, we have the lapply, we have the output is a list. Here we have the various options, the vector, matrix, or list. So lapply, if we are using this lapply on the cipher marks dot list and we find out, so we see we are getting a vector. And if we use this on the data frame, cipher tutor-tech.df, and we see what happens. So we are getting this. So we can use same thing on the data frame. We are getting the vector. We could use on the vector lapply random we have taken here. This is our random. This is a random vector. This object, and we could apply this. So mostly we are getting the vector format. And tapply, this is very important function. So tapply we have three attributes: x, index, and function.
It is not a apply function like apply function. We are taking the uh, x margin and function. Margin is a different thing, and index is a different thing. Index means you have some categorical column. Suppose I will just say that we have to find out the uh, I just create script here, and I take data of empty cars, empty cars. So everybody knows the empty cars, and I will just tell you again the structure. I will just show you the view of empty. So you see, with this we have a view, and we have this categorical like these are the discrete variables. So this is the binary given one VS and M. I want to find out the mean of mileage. So easily I could find out the mean of mileage of all 32 observations. But I want to find out the mean is per the type of engine. I want to find out the mean of V-shaped engine mileage, mean of mileage for the V-shaped engine, and mean of the mileage for the state engine. So what I will do? Otherwise, I have to make a sub data frame, then I could find it. Okay. Or I have to group by the function, then I could find out the mean. Okay. I will show you. The group by we have not learned so far, but later on we will learn this. So one approach is that of the library dplyr, which we use is group by. So it is the new MD1 I'm writing, MD underscore VS. V, I am taking the V set here, and MD group by VS, then summarize mean, summarize mean of VS, mean of mileage. Okay. I will see. And I will show you this. This is the mean of VSEP, 16.6 miles per gallon. And this is the 24.6 miles per gallon. So this we are getting the mean of the category as per the category, mean of the mileage. This is the mileage mean, and these are the category of PS. So we have to use the group by function. Okay. For this, we have tapply. The same thing I will do through the tapply. I will show you here so you can easily understand. Tapply function. In the tapply function, I will put down the numeric variable first. So numeric variable is my numeric variable is mileage. So MD dollar mileage, and then I will put the categorical variable. So that is the VS, MD dollar VS, and then I will put down the function, whatever function I want. I want the mean. So I just run it. You see, it's very easy. You don't have to make a group by and summarize and this on. We are just using the tapply function for the different category. Okay. The mean of the mileage we are getting for the VSAT. Similarly, we could find out the forest for the gear. So these are 3-gear, 4-gear, 5-gear vehicle. They are giving the mean average. You do for the cylinder also. For 6-8 cylinder. You can do it for the AM, automatic and manual gear transmission. You are getting this. So this is a very useful function to apply. We mostly use it. Now we have tapply have given here the same thing. You do it yourself. I will share this.
Okay, I explained you how we use the T apply. So is there any doubt in this function up to now? Yes, Sangeeta. हाँ सर, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं सर। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? शैलू, आपको हो रहे हैं कंसेप्ट क्लियर? यस सर। फाइनेंस, यस सर। सभ्य, ये मार्जिन इंडेक्स वाला जो आपने समझाया वो मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया, तो अच्छा, बात बताइए। मार्जिन जो है ना, अपन अप्लाई फंक्शन में मार्जिन यूज होता है। मार्जिन होता है रो या कॉलम। आप रो वाइज एवरेज चाह रहे हैं या कॉलम वाइज एवरेज चाह रहे हैं? ठीक है, वन Okay. डायरेक्शन। और जो इंडेक्स होता है ये अलग है। टी अप्लाई फंक्शन आपको कोई वेरिएबल है जो कैटेगरिकल है, उसके रेस्पेक्ट में कोई कंटिन्यूस वेरिएबल का आपको कोई भी मीन, मीडियन, मॉड, मैक्सिमम, मिनिमम, व्हाटएवर, वो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जैसे 0 और 1 मुझे मालूम करना था कि भैया यार वी सेवन इंजन का माइलेज एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ माइलेज कितना है, और स्टेट जो इंजन है हमारे गाड़ियां हैं उनका एवरेज ऑफ माइलेज कितना है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ग्रुप बाय फंक्शन से जाऊं मैं, भाई ग्रुप बनाऊं और फिर उनके मीन लूं, जैसा मैंने बताया था आपको, या फिर मैं टी अप्लाई में, तो वो इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो कैटेगरिकल वेरिएबल है, वो 1 या 2 नहीं है, रो एंड कॉलम नहीं है। व्हाट, Understood. समझ रहे हैं आप बात को? हम्म, इंडेक्स जो है दैट इज द कैटेगरी की कॉलम। ओके, ठीक है। ये चीज है। रित्या जी, आपको आ गया समझ में? यस सर। ये अपन ने लिया है इसमें। अब हमें इट्स अवर पोल टाइम। सो आर यू रेडी? यस सर। So I have launched the poll. यदि आपका कमांड पूरा नहीं होता है, आपने आधा कमांड लिखा है, तो प्रॉम्प्ट जो होता है वहां पे किस तरह का साइन आता है? एक व्यक्ति का और बचा है, करेक्ट, सही है। तो देखिएगा 60% लोगों ने जो है वो, पोल एंड कर रहा हूँ, हो गया सबका। सो रिजल्ट शेयर करता हूँ आपको। रिजल्ट दिख रहा है आपको? यस यस। सर। सो इसमें 60% लोगों ने दिया प्लस, और 20%, 40% लोगों ने दिया है प्रॉम्प्ट साइन, जो होता है ग्रेटर देन वाला। तो जब इनकम्प्लीट कमांड होता है तो प्लस आता है ना? तो अधिकतर लोगों ने सही दिया है। ठीक है, दिस द राइट, द प्लस इज देयर। ओके, सो ठीक है, अच्छा है, बहुमत है। तो ये पोल टाइम अपना, ऐसा अपन हर डेली थोड़ा सा लिया करेंगे पोल। 5, अब तो 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अप्लाई फंक्शन है ना, अपन ने कर लिया है अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन के बाद हम आते हैं उन फंक्शन भी बता ही दिया है मैंने, ये अप्लाई भी बता ही दिया, ये सब कर ही चुके थे। अब देखिएगा कि कुछ मैं नई चीजें आपको बताता हूँ। अपना जो लाइब्रेरी था VCD, है ना, मैं पहले इधर सब फिनिश कर दूं
बहुत ज्यादा कचरा हो गया, इसे भी हटा देता हूँ। So, VCD लाइब्रेरी हम लोग आर्थराइटिस डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। तो आप शेयर नहीं कर रहे। So, are you getting it? Yeah. So VCD लाइब्रेरी हम लोग आर्थराइटिस डेटा सेट के लिए यूज कर सकते हैं। आर्थराइटिस में एक नया कॉलम मैंने बनाया, जस्ट जय श्री राम बोलते हैं उसको, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं दूध वाले को। यहाँ पर JSK चलता है वैसे। है यहाँ पर JSK चलता है, जय श्री हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। तो मैं एक नया कॉलम बनाया एज के लॉग का, जो हम पहले भी देख चुके हैं, और मैं इसको रन करता हूँ। और मैं यदि हेड दिखाऊं तो आप देखिएगा कॉलम जो कि लॉग एज। इसी प्रकार में एज जो है लेस देन 40 आर्थराइटिस, यदि मैं खाली एज आर्थराइटिस एज लेस देन 40 यदि करूंगा तो ये लॉजिकल फंक्शन है, स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये मुझे लॉजिकल रिस्पॉन्स देगा ट्रू एंड फॉल्स, है ना, इस प्रकार से। तो मुझे इसे मतलब ये मुझे न्यूमरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 1 में चाहता हूँ, ठीक है। So I will convert this in numeric and show you again the head. So it is instead of the previous case, uh, the new column I have changed this column with this binary. मैंने पहले log value लिया था, मैंने वही नया कॉलम में दूसरी कुछ और चीज ले ली। So it is the mutation of column, है ना। अब एक सैंपल मैं ले रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हम जो एनएज या कोई आउटलेयर उसकी वैल्यू जब इंप्यूट करते हैं तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। मैं एक सैंपल लिया 40 नंबर्स का, जिसमें से 10 मैंने लिए हैं, आउट ऑफ 40 की पॉपुलेशन है उसमें से 10 का सैंपल लिया है। ये मेरा सैंपल है, ये मुझे 10 नंबर मिले रैंडम। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 20 तो कोई नहीं है,
ग्रेटर देन 20 को 20 कर देंगे और रिमेनिंग को x लेंगे, तो ग्रेटर देन 20 है 22, 34, 39, 37, 27, इसको ये 20 कर देगा और रिमेनिंग को वही रेंज देगा x, जो x है ना, जो 11 है 11 ही रहेगा, 1 है 1 ही रहेगा, 7 है 7 ही रहेगा, 18 तो 18 ही रहेगा। जो 20 से ग्रेटर नहीं है वो वही रहेंगे और जो 20 से ग्रेटर है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे और 20 जो है वो 20 ही रहेगा। तो हम इसको करके देखते हैं। इफ एल्स फंक्शन यूज होता है। इफ एल्स में पहले कंडीशन, उसके बाद वो कंडीशन यदि आपकी एक्सेप्ट हो रही है तो क्या करना है, और यदि रिजेक्ट हो रही है तो क्या करना है। अपन ने पहले भी इफ एल्स फंक्शन, इफ फंक्शन देखा। इफ फंक्शन में अपन एल्स अलग लेते थे, है ना, पर वो जो होता है, वो जो इफ एल्स एंड एल्स इफ एंड एल्स जो फंक्शन है वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई होगा, पूरे पे नहीं अप्लाई होगा। मैं आपको बताऊंगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, इस फंक्शन को यस सर। देखिएगा। पहला जो इफ एल्स में है कंडीशन, क्या आप क्या कंडीशन चाहते हैं, x इज ग्रेटर देन 20, x इज स्मॉलर देन 20, x या इक्वल टू दिस, है ना, बट यस और वो क्या, यदि कंडीशन एक्सेप्ट होती है हमारी तो क्या होना चाहिए उसकी, मतलब उसमें क्या चेंज करना है। तो कंडीशन एक्सेप्ट होगी तो ग्रेटर देन 20, तो हमें क्या करना है भैया, उसकी जगह 20 लिखना है। मान लीजिए 20 आपका आउटलायर है, सिंथेटिकल यूसीएल है ना, अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द आउटलायर। 20 से बड़े जो भी चीज होंगी आप क्या करेंगे, जब कैपिंग करेंगे तो उसको 20 करेंगे। तो मैंने वही किया, x इज ग्रेटर देन 20 को मैं 20 कर रहा हूँ। व्हाट इट क्लियर? और सर लास्ट में हमने एक्स क्यों लिखा है? हाँ, जहाँ ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है वहां क्या होगा, वो एज इट इज रहेगा। हाँ वो एज इट इज। तो एज जो है वो ऐसा, वो इसलिए लिखा जाता है, फुलफिल नहीं हो रही तो वहां क्या करना है, वहां कुछ और भी लिख सकते हैं आप, So है ना। this means to say कि जो भी values 20 से ऊपर है वहाँ पर the response will be 20, हाँ either 20 or it will be x if it is less than 20. हाँ, लेस देन 20 और इक्वल टू 20 इट वुड बी सेम, है ना, एक्स मतलब जो भी रहेगा वही रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा सबको। यस सर। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल लिया हूँ। मैं इसको रन तो किया था, इसको आपको प्रिंट कर दिया है। हाँ, ये 20 आ गया ना, सब जहाँ भी ग्रेटर देन 20 था वो 20 आ गया। एक आर्थराइटिस न्यू कॉलम फिर से मैं डेवलप करूंगा आर्थराइटिस में, न्यू के नाम से। इफ एल्स आर्थराइटिस स्मॉलर देन 40, जो मान लो ये मेरी लोअर लिमिट है, एलसीएल है, लोअर कंट्रोल लिमिट है, 40 से कम वाले, तो 40 से कम वाले 40 हो जाए, इसको मैं फ्लोरिंग बोलूंगा, है ना, आउटलायर्स में। और बाकी वैसे ही रहे एज में, क्योंकि ये तो एज कॉलम में कर रहा हूँ ना, तो एक्स, ये एक्स है मेरा, ये एक्स देखिएगा। ओके, एनी डाउट है? नो सर। So I just run this and I will show you the head. You'll see here whatever the value we are getting less than 40 is converted in 40. The 40 is 27, you see here 40, 29 is 40, okay, 30 is 40, 32 is 40, but 46 is 46. जो भी 40 से कम है वो 40 में कन्वर्ट होता है, जो 40 से ज्यादा है वो एज इट इज। व्हाट इट, एनी डाउट? हाँ जी, सर ये जो चार्ट प्रिपेयर किया एक बार फिर से दिखाना है। ये वाला भाई अपन ने क्या कंडीशन लगाया, जो 40 से कम है वो 40 हो जाए, तो 27 जो है वो 40 में कन्वर्ट हो गए, ओके, यस 29 भी 40 में कन्वर्ट हो गए। जो 40 से ज्यादा है वो वही है, जैसे अपन पिछले केस में किया था, लेस देन 20, तो है ना, सेम चीज है। ठीक है, ये आउटलेयर्स के लिए इसमें से ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, ये फंक्शन यूज करेंगे आउटलेयर को एडजस्ट करने के लिए। अब हम आते हैं थोड़े और
डिफरेंट फंक्शंस हैं, फिल्टर है, सेलेक्ट है, अरेंज है, म्यूटेट है, समराइज है। ये सब फंक्शंस बहुत यूज होते हैं और इसमें हमें काफी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसमें मैं डीप्लायर डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज हो रही है और एज फ्लाइट जो है वो डेटा सेट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको पहले व्यू करवाता हूँ एज फ्लाइट्स। दिस इज माय हाई फ्लाइट डेटा सेट and you will see here, if you want to see the details of this, you could also find out this. So the Houston flights data. Just a moment. It is the Houston flights data. The data set contains all flights departing from Houston airport, IE George Bush International Airport, and Houston Hall. The data comes from the Research and Innovation Technology Administration at the Bureau of Transportation Statistics. And the data frame has 227,496 rows and 21 columns. It's a large data set. And detailed HRC underscore H flights catches a SQLite version of the data in a standard location for use in exams. SQL भी अपन को मिल सकता है, डेटा सेट हम यहाँ से ले सकते हैं। जो वेरिएबल्स हैं इसमें वो क्या है, पहले हम उसको समझो, क्योंकि इस पे हमें काफी काम करना है। दो इस डेटा सेट, एक ईयर वेरिएबल है, मंथ है, डे ऑफ मंथ है। ये तीन डिफरेंट वेरिएबल है, ईयर, मंथ, डे ऑफ मंथ। मतलब उन्होंने जो डेट है ना उसको एक में नहीं दिया है। ईयर का कॉलम अलग है, मंथ का अलग है, डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ यानी आपका सप्ताह का दिन, ये महीने का दिन। सो 1 से लेकर के वो तारीख जो होती है वो दी है। फिर इसके बाद डे ऑफ वीक दिया हुआ है, एक और कॉलम। तो डे ऑफ वीक जो होता है संडे 1 होता है, एवरीबॉडी नोज इट, संडे 1 होता है। और इस प्रकार से चालू। फिर डिपार्चर टाइम है, अराइवल टाइम है फ्लाइट्स का। यूनिक कैरियर क्या होता है कि टाइप होता है फ्लाइट, यूनिक कैरियर। कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एक लोकल बसेस होती हैं, एक आपका एसी वाली बसेस होती हैं, अलग अलग बसेस टाइप होते हैं, जैसे अपन कहीं भी सफर करते हैं। तो यूनिक कैरियर ऐसे ही ट्रेन का भी होता है, एक्सप्रेस ट्रेन हो, फलाना पैसेंजर, दैट इज ए यूनिक कैरियर इन द फ्लाइट्स। यूनिक एब्रीविएशन फॉर ए कैरियर। किस तरह का फ्लाइट है उस हिसाब से उसके फेयर वगैरह डिसाइड होते हैं। फ्लाइट नंबर इज ए रूट नंबर, कि भाई 25 नंबर रूट की बस है, 27 नंबर रूट है, 25 नंबर, 27 नंबर, दैट इज द रूट नंबर, बेसिकली द फ्लाइट नंबर। टेल नंबर इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फ्लाइट, दैट इज द कार रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, जिस समय कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आरटीओ द्वारा दिया जाता है, दैट इज अ टेल नंबर ऑफ द, इट इज द डिफरेंट फ्रॉम ईच फ्लाइट। मतलब हर ईच प्लेन, हर प्लेन का ये अलग होता है। हाँ, फ्लाइट नंबर कई प्लेन जो हैं सेम रूट पे जा रहे हैं तो सेम फ्लाइट नंबर होगा। ओके, सो दैट इज द फ्लाइट नंबर, टेल नंबर, एक्चुअल elapsed टाइम ऑफ फ्लाइट इन मिनट्स है कितना, एयर टाइम हवा में कितनी देर रहा, अराइवल रेट, डिपार्चर डिले, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ओरिजिन जहां से वो फ्लाइट शुरू हुई और डेस्टिनेशन कहाँ के लिए, distance of flight in miles, taxi in, taxi out. Can somebody explain me the taxi in, taxi out? What does it mean? Taxi in, taxi out. रनवे से जब तो टाइम लगता है उसको रनवे तक पहुंचने में, वापस आने में। हाँ, करेक्ट करेक्ट। टैक्सी इन, टैक्सी आउट, जब वो
ये अपना फ्लाइट लैंड होता है तो फिर उसको वहां तक जिसको हम बोलेंगे जहाँ लोग उतरते हैं वहां तक पहुंचने में टर्मिनल तक जो टाइम लगता है दैट इज द टैक्सी। टैक्सी आउट टर्मिनल से आपके वहां तक जाने में रनवे तक जो फ्लाइट जाती है टेक ऑफ होती है वो टैक्सी आउट टाइम। बट इट कैंसिल, कुछ फ्लाइट कैंसिल भी होती है, तो कैंसिल है तो उसका इंडिकेटर 1 होगा और जो कैंसिल नहीं हुई है उसका 0 होगा। कैंसिलेशन कोड वहीं आएगा जहां पर कैंसिल में 1 होगा। भाई कैंसिल हो जाएगी तभी तो कुछ कोड देंगे ना, किस किस कारण से हुई है, उसमें रीजन दिए हैं, कैरियर के कारण हुई है, वेदर के कारण हुई है, नेशनल एयर सिस्टम के कारण हुई है, सिक्योरिटी के कारण हुई है। तो जहाँ 1 होगा वहीं ये रीजन मिलेगा, या 0 होगा उसके आगे ये कॉलम एम्प्टी होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर डाइवर्टेड, कुछ फ्लाइट्स हम लोग डाइवर्ट करते हैं, यस। सो ये पूरे डिस्क्रिप्शन है इस डेटा सेट का। एनी डाउट एनीबॉडी? वन हैज एनी डाउट? ये सभी न्यूमेरिक है ना सर? ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमें, आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये तो ये कैरेक्टर है, यूनिक है। टेल नंबर कैरेक्टर है, ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। फिर ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ये एब्रीविएशन है जगहों के नाम के। फिर कैंसिलेशन कोड, आपको मालूम है कि जहाँ 1 होगा वहीं दिखेगा, 0 होगा तो वहाँ दिखेगा, ठीक है। डाइवर्टेड इंटीजर, इज इट क्लियर नाउ? Structure of the data 2,27,496 of the recent 21 variables. Got it? यस सर। एंड ये डेटा फ्रेम ही है ना ऑफ कोर्स? हाँ डेटा फ्रेम है, पर हम इसको टेबल फॉर्म में लेंगे क्योंकि बड़ा डेटा है। हम डायरेक्ट डेटा फ्रेम रीड करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो टाइम ज़्यादा लेगा, दिक्कत तो नहीं, टाइम ज़्यादा लेगा प्रोसेस में। सर हम इसको इसको में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? किसमें? इसको हम पूरे डेटा फ्रेम को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा कि ये तो ए है, इसको कैसे नंबर बनाओगे? वो हमारा कोई फंक्शन नहीं था क्या वेयर वी यूज्ड टू कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू न्यूमेरिक? नो ऐड नो, न्यूमेरिक करके? वो डमी वेरिएबल बनाते हैं, वो अलग। अच्छा। डमी वेरिएबल बनाते हैं, जैसे 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी है, तो हम डमी वेरिएबल जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है तो मेल का एक कॉलम हो गया, फीमेल का एक हो गया, ट्रांसजेंडर का एक हो गया, ऐसा कर सकते हैं। तो जो मेल होगा उसमें मेल वाले में 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। हाँ। फीमेल है तो फीमेल वाले कॉलम में वहां 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे, ओके। ऐसा रहता है। वो फिर आगे आएगी वो चीजें, ठीक है। तो अब अपन इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। टेबल में क्या होता है कि प्रोसेस टाइम कम लगता है, ठीक है। यदि बड़ा डेटा है थोड़ा सा, टेबल अंडरस्कोर डीएफ है होती है, डेटा फ्रेमिंग एक्सटेंड किया जाता है इसको। इसको मैं नाम दे रहा हूँ फ्लाइट्स, है ना, इस ऑब्जेक्ट नेम इज फ्लाइट्स और आई एम कन्वर्टिंग दिस इन टेबल, टेबल TIBBLE। सो आई जस्ट सॉरी सेलेक्ट कर लिया था उसको, ये मैंने टेबल रन किया है। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, प्रिंट करके देखिएगा। टेबल को आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, आपको हेड वेट की जरूरत नहीं है। तो जब डायरेक्ट प्रिंट करते हो तो टेबल क्या होता है, पूरा डेटा नहीं देता है आपको, एक ग्लिम्स छोटा सा उसका एक दिखाता है कि हाँ भाई ये कॉलम है, ईयर मंथ, डे ऑफ मंथ, वीक ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, डिपार्चर टाइम, तो कुछ कॉलम दे देगा और कुछ रोज दे देगा, 10 रोज देता है जनरली डिफॉल्ट में, और फिर लिख देगा कि विथ 227,486 थे ना रोज, और हैं इसमें मोर रोज हैं,
एंड 12 मोर वेरिएबल्स। तो अपन को देखिए 21 वेरिएबल्स थे, तो यहाँ इसने जो दिए इसके अलावा जो वेरिएबल उनकी संख्या बता रहा है कि 12 और 9 वेरिएबल यहाँ दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12 मोर वेरिएबल्स। एक्चुअल एलिप्स टाइम और जो वेरिएबल के नाम दे देगा, जो वेरिएबल है और उनके क्लास दे देगा, इंटीजर है, कैरेक्टर है, या आपको एक समझने के लिए हो जाता है। क्लियर? आपको हेड नहीं रन करना पड़ा, आपको स्ट्रक्चर नहीं देखना पड़ रहा है बार बार, सब में स्ट्रक्चर में क्लास यहाँ दे रहा है कॉलम में, जो कि डेटा फ्रेम जब हम हेड लेते हैं तो क्लास नहीं देता। ठीक है, एनी डाउट? तो हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस टाइम कम लगता है, वो हमें बार बार प्रिंट करने पे हमें हेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसी डेटा सेट को यदि हम रन कर देते हैं तो हमें प्रिंट मिल जाएगा और जगह भी कम लेगा, है ना। तो आप देखिएगा, आज हम चालू करेंगे कुछ फंक्शंस की, फिल्टर, सिलेक्ट, अरेंज, म्यूटेट, समराइज, ग्रुप बाय, कॉलेप्स डेटा, ये सब हमारा चालू होगा। 2 दिन का और बचा है प्रिपरेशन, है ना। तो नेक्स्ट कल तक ये खत्म हो जाएगा पूरा। डेटा प्रिपरेशन ओवर हो जाएगा, हाँ, डेटा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके बाद इन्फ्लुएंशियल है ना। हाँ, इसका दिन कैसे चालू। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने 2 प्रकार से इसको यूज किया है। एक तो आर का बेसिक अप्रोच और एक जो डीप्लायर का अप्रोच, फिल्टर वगैरह जो फंक्शन। फिल्टर का मतलब होता है कंडीशनल फिल्टरिंग ऑफ डेटा, डेटा की कंडीशनल फिल्टरिंग करना। फिल्टर फंक्शन अप्लाई होता है रोज पे, ना कि कॉलम पे। सिलेक्ट और ड्रॉप ए कॉलम्स बेस्ड ऑन देयर नेम्स, जो कॉलम हम सिलेक्ट करना है, जो ड्रॉप करना है, ये कॉलम पे। सिलेक्ट फंक्शन कॉलम के लिए, फिल्टर फंक्शन रोज के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अरेंज तो वही सॉर्टिंग करना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। म्यूटेट यानी मॉडिफाई योर डेटा, एक नया कॉलम बनाना पिछले कॉलम की हेल्प से। समराइज, ग्रुप बाय करके उसको समराइज करना, जैसे अभी मैंने बताया था 0 और 1 का, है ना, जो अपन ने माइलेज निकाला था। अपन इसी चीज को अब डिटेल में पढ़ना है। फ्लाइट्स मेरा डेटा सेट है और मुझे यहाँ क्या करना है कि 1 जनवरी का डेटा चाहिए। 2011 का डेटा है, एक ही साल का डेटा है हमारे पास, 365 दिन का, और मुझे 1 जनवरी का डेटा चाहिए। मैं यदि आपको ये फ्लाइट्स का दिखाऊं, व्यू कराऊं, तो ये फ्लाइट्स है, मेरा मंथ है, डे ऑफ मंथ है, वीक ऑफ मंथ है, ईयर है। तो मुझे 1 जनवरी, क्योंकि यहाँ तो एक ही है ईयर में, 2011 ही है, तो इस कॉलम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 12-13 और होता तो मैं फिर बात करता कि हम भाई मुझे क्या आगे चाहिए, हर साल के 1 जनवरी का डेटा चाहिए। एक ही हमें यूनिक डेटा ऑटो पॉइंट मिलेगा। तो 1st मंथ एंड डे ऑफ मंथ, मुझे इस दिन का डेटा चाहिए। तो इस दिन कितनी, क्या 1 जनवरी को क्या क्या था, क्या फ्लाइट्स गई थी, क्या फ्लाइट्स आई थी, नहीं, जनवरी का डेटा चाहिए। तो ये जनवरी का डेटा मैं निकालूंगा इसमें से। देखिए, ये भी जो है 1 जनवरी का डेटा है, ये भी 1 जनवरी का। तो इसमें बहुत सारे 1 जनवरी का डेटा होगा। ठीक है, अलग अलग फ्लाइट्स आई गई होंगी ना, एक ही थोड़ी होगी, ये तो सिंगल सिंगल फ्लाइट्स का डेटा है हर रोज। तो मुझे वो चाहिए, तो मैं देखता हूँ इसको। तो मैं जो यूज करूंगा फ्लाइट्स डेटा फ्रेम, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं कंडीशन डालूंगा कि फ्लाइट्स डॉलर मंथ इक्वल इक्वल टू 1 चाहिए मुझे, और साथ में, या और यदि ये इसका मतलब और नहीं लेना है। मान लीजिए मुझे एंड कंडीशन यूज करना है, नॉट यू कैन यूज द कॉमा और एम रिप्रेजेंट द एंड कंडीशन। तो मुझे एंड चाहिए, मुझे 1 जनवरी का ही चाहिए, एंड लिखूंगा मैं, ये कॉमा दे दूंगा, एक ही बात। एंड लिख रहा हूँ डे ऑफ मंथ 1st। तो ये तो मेरा रो से रो से फिल्टर किया मैंने, ये फिल्टरिंग कहलाया ना पूरा प्रोसेस। भाई मैंने फिल्टर किया है कि 1 जनवरी का डेटा और 1 तारीख का डेटा, मतलब 1 जनवरी का डेटा चाहिए। तो डे ऑफ मंथ इज 1 एंड द मंथ इज 1,
ये दोनों कंपल्सरी है। और कॉमा के बाद मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि मुझे सभी कॉलम चाहिए। D1 मैं डेटा फ्रेम कर लूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए month 1, day of month 1 आगे समझिए। सो देयर आर 542 मोर रोज, मतलब 552 रोज है, 21 कॉलम पूरे ही हैं। रो जो है 552 फ्लाइट्स 1 जनवरी को डिपार्ट हुई थी। ओके, डिपार्ट हुई थी वहां से, फ्लाइट्स डिपार्टिंग डेटा This is on 1st January only. 1 जनवरी। Okay. Houston is a very big airport. You know that it was मेरा एक ड्रीम था कभी कि मैं हॉस्टन जैसे एयरपोर्ट का चीफ बनूं, कंट्रोलर चीफ। क्या अभी भी कर सकते हैं सर? नहीं, कंट्रोलर चीफ अब कहाँ, एक ड्रीम था मेरा जब मैं 9th-10th में था, तब मेरा ड्रीम था कि मैं हॉस्टन जैसे मतलब एयरपोर्ट का कंट्रोल चीफ बनूं, बड़े से उसमें बैठ के और पूरी टीम को कंट्रोल करूं। इतनी फ्लाइट्स आ रही, इतनी जा रही, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। सो इसमें हमने मंथ 1 लिया है एंड डे ऑफ द मंथ भी 1 लिया है। बन लिया, कंडीशन एंड डली है क्योंकि दोनों इंटरेक्शन चाहिए मुझे, है ना। अब यदि मैं और कंडीशन डालता हूँ, देखिएगा आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। और अब और में क्या होगा कि एक फर्स्ट मंथ का डेटा यानी पूरे फर्स्ट मंथ का डेटा 1 तारीख से 31 जनवरी तक, यहाँ ये हो जाएगा। या और का मतलब या तो ये पूरे फर्स्ट मंथ का पूरा डेटा, या फिर हर महीने की पहली तारीख का डेटा। तो 12 महीने हैं, तो 12 ऑब्जर्वेशन तो ये हो जाएंगे और 31 ऑब्जर्वेशन ये हो जाएंगे। 12 और 31 कितने हो रहे हैं? 43। टोटल 43 डेज का हमें डेटा मिलेगा। अब 43 डेज में तो कितनी फ्लाइट्स बहुत आई होंगी, देखना नंबर ऑफ डेटा जो 552 था यहाँ पे, ये बढ़ जाएगा, ये थाउजेंड्स में पहुंच जाएगा। देखिएगा कितना हो गया, 25,769। यहाँ जनवरी के पूरे 31 दिन का डेटा आ रहा है, डे ऑफ मंथ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 111 था खाली। यहाँ हमने और कंडीशन दे दी एंड की जगह, एंड में दोनों कंपल्सन थे भाई, डे ऑफ मंथ भी फर्स्ट चाहिए, मतलब जनवरी चाहिए, और सॉरी और डे ऑफ मंथ मतलब फर्स्ट चाहिए, मतलब पहला दिन चाहिए, और मंथ जो है वो जनवरी चाहिए। यहाँ पर मंथ जनवरी चाहिए या डे 1 चाहिए, तो मंथ जनवरी भी फुलफिल कर रहा है पूरे 31 दिन, और डे भी 12 महीने का पहला दिन। गॉट इट? सर सिंटैक्स में क्या चेंज हुआ वो समझ नहीं आया। ये पाइप लग गया और कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ एंड था, हाँ यहाँ और हो गया। और के लिए यूज करते हैं एंटर साइन के ऊपर सिर्फ दबा, अच्छा, तो देख उसमें एरो के पास होता है। मंथ इज जनवरी एंड ऑल डेज ऑफ द मंथ। हाँ, और कंडीशन आ गई, या तो ये फुलफिल या ये फुलफिल या दोनों। ओके। और यहाँ था एंड में क्या, दोनों कंडीशन कंपलसरी है ना, यहाँ कोई रियायत नहीं है। क्लियर? Yeah. इज इट क्लियर नाउ एनीबॉडी? संगीता, कनंज, समझ में आया? Yes, sir. है ना? अब हम इसी को डीप लायर का जो फंक्शन है फिल्टर, उससे देखते हैं। ये तो आर का बेस अप्रोच है ना, हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर फ्लाइट्स, यहाँ हम कॉमा भी दे सकते हैं और एंड भी लिख सकते हैं।
है ना, एंड कंडीशन के लिए कॉमा दे देंगे जो अपन ने पहले लिए था ना। तो मंथ 1 एंड डे ऑफ मंथ 1, देखिएगा मैं इसको आपको करके बताता हूँ, सेम चीज हमें मिलेगी 552 क्रोर्स। ओके, जो एंड वाले कंडीशन था वही मिला ना हमें इसमें। मैं चाहूँ तो यहाँ एंड लिख दूँ और इसको रन कर दूँ, और सिंबल इट विल टेक ओनली, सिंबल ही लेगा, एंड वैसे लिखेंगे नहीं लेगा, वही चीज 552। या तो मैं एंड लिख दूं या कॉमा लगा दूं, तो इंटरसेक्शन ही देगा ये। ठीक है, अब मुझे यदि और वाला चाहिए तो मुझे पाई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा वही 27,000 कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। आ गया, इसको D2 रन नहीं किया मैंने। 25,769 ये ऑब्जर्वेशन मिलेंगे हमें। क्लियर? तो ये डीप्लायर का फंक्शन है फिल्टर। ये जरा इजी पड़ता है। फिल्टर में आपने पहले डेटा का नाम लिख दिया, फिर आपने वो वेरिएबल्स लिख दिए, कंडीशन लगा, इंटरेक्शन चाहिए या इंटरसेक्शन चाहिए या आपको और चाहिए, यूनियन चाहिए। गॉट इट? एनी डाउट यहाँ तक? So sir, सिर्फ pipe and an है ना ये दो हाँ, याद ये दो ही है, दो ही रहेंगे। या तो दोनों चीजें कंपलसरी है स्ट्रिक्टली, या आइदर फर्स्ट और सेकंड या दोनों। इसका मतलब होता है आइदर वन और सेकंड और बोथ। ओके, तो आइदर फर्स्ट की बात करें तो मंथ जो है जनवरी, उसके पूरे 31 दिन की बात करेगा। यदि हम डे ऑफ मंथ की बात करें तो 12 महीने की पहले तारीख की बात करेगा, पहले दिन की बात करेगा। और दोनों में मतलब 1 जनवरी की बात करेगा। वो तो यूनिक ही हुआ, एक ही आएगा 1 जनवरी। गॉट इट? Yeah. ये वो चीज है। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है, इतना और खत्म कर लेते हैं बस, फिर बाकी कल देखेंगे। सर ये और फंक्शन के लिए आपने जो साइन लिया वो कैसे आया सर? एंटर जो है उसके ऊपर आप देखेंगे बैक स्पेस की जो होती है ना, उसके पहले ये शिफ्ट कर, हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं आपको यूनिक कैरियर के पहले यूनिक्स बताता हूँ कि फ्लाइट्स के यूनिक कैरियर में क्या है। इतने यूनिक कैरियर, इतनी तरह की फ्लाइट्स हैं, अलग अलग वेराइटी। किसी में कोई अच्छी फैसिलिटी में, किसी में कुछ फैसिलिटी अच्छी है, उस हिसाब से इनके यूनिक कैरियर दिए जाते हैं। AS-B6 CO DL, है ना, उनकी जो सेवाएं रहती हैं, जो और भी टेक्निबिलिटी होती है, उसको देख के ये डिसाइड होता है जो आपको सर्विसेज दी जा रही है। सो अब ये एक ही कॉलम में बात कर रहा हूँ, एक कॉलम में मैं क्या इंटरसेक्शन यूज कर सकता हूँ? भाई जो ए यूनिक कैरियर है वो क्या यूए यूनिक कैरियर हो सकता है? पॉसिबल है क्या? सर क्वेश्चन क्या है? भाई मैं यहाँ पर एंड यूज कर सकता हूँ कि पाइप की जगह? यदि मुझे सिलेक्ट करना हो, फिल्टर करना हो ए फ्लाइट और यूए फ्लाइट, क्या कोई फ्लाइट दोनों हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती। तो एंड तो कभी यूज नहीं कर सकते अपन सेम कॉलम में, वहां तो कॉलम डिफरेंट है ना, मंथ अलग कॉलम था और डे ऑफ मंथ अलग कॉलम था, तो हम उनके इंटरसेक्शन देख सकते थे। पर सेम कॉलम में इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, दो कैटेगरी हो ही नहीं सकती है। ओके, करेक्ट। तो हम हमेशा पाइप फंक्शन यूज करेंगे। और ये मैं फिल्टर लगा रहा हूँ कि जिसमें ए और यूए फ्लाइट्स हमें मिलेंगी। ये दोनों फ्लाइट्स हमने सिलेक्ट कर ली, ए एंड यूए। ए भी मिल गई और यूए भी मिल गई, तो 5,306 मतलब 316 हमें टोटल ऑब्जर्वेशन इसमें मिले हैं इन दोनों फ्लाइट्स। ठीक है, मान लीजिए आपको दो से ज्यादा कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ तो अपने दो कैटेगरी सिलेक्ट करनी थी, है ना। कई बार हमें दो से ज्यादा कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तब हम पाइप टू फंक्शन यूज करेंगे, परसेंट इन परसेंट वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। और अंदर वेक्टर में जितनी भी कैटेगरी हमें सिलेक्ट करना है वो हम लिख देंगे।
गॉट इट? अब मैं 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। 2 तक के तो पाइप टू फंक्शन यूज कर लिए, ये वाला फंक्शन यूज किया था आपने पाइप फंक्शन। फिर आप तीसरा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमारे लिए। आप तीसरा भी रख सकते हैं, यूनिक कैरियर इक्वल टू, है ना? तीसरा वाला भी रख सकते हैं, मैं यहाँ रख नहीं रहा हूँ। बेटर होता है कि हम इस तरीके से करें तो हमारा टाइम बचता है, हमें यूनिक के लिए पूरा टाइम निकलना पड़ रहा बार बार। देखिएगा अब मेरे को ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएंगे। 21,377 मुझे मिल रहा है, पिछली बार मुझे मिल रहे थे 5,360। मतलब जो वो फ्लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी में। यदि टेबल देखेंगे इनके तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी फ्लाइट्स कितनी है। देखिए वो जो है 16,061 फ्लाइट्स, ए और यूए हमने लिया था। ए 3,244 और यूए वो हमारे पास थी 2,072। ओके, तो ये हमें मिल गया। इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीपल कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, जिनका हम सब डेटा फ्रेम बना करके हमें उपयोग करना है। ये हम लोग इससे कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। यस सर। Yes, sir. हाँ, स्क्रिप्ट आपको शेयर करा हुआ है मैंने शायद। हाँ, पिछला वीडियो और ये वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आज अपन यही वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक? थैंक यू एनी सर। और कोई क्वेश्चंस वगैरह, आपके कुछ क्वेरीज हो? सर ये एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई थिंक इसमें थोड़ा क्वेश्चंस निकलेगा मेरा, तो फिर आई विल आस्क यू ऑन हाँ। मंडे। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी।